international level great scholar. So I hope you ask your questions and your doubts in a clear manner. Try to be brief. And the speaker, Dr. Mark Dyczkowski, he will definitely try to give answers to your questions. So please just raise your hand and I will tell you who will ask the question. Okay? If you want to ask any questions, just raise your hand. आइए Simple question is that, when sir proposed the thesis that the essence of Shastras is Prasiddhi. So I just want sir to make me believe how can I, accept it as a matter of fact, that how the essence of Shastras is Prasiddhi. So this is my first question. The essence of Shastras, how can I believe this fact that essence of Shastras is Prasiddhi? My second question is that when you propose the idea that the basic fundamental of Maya is contradiction and the basic fundamental of reality is coherence and non-contradiction. So basically, I personally feel that, the one of the essential idea which we all try to understand in Kashmir Saivism or in Tantra, the idea of pleasure. Pleasure is basically one of the essential fundamental of human consciousness. I don't know whether it is or not, but it somehow seems to me one of the contradictory element in the whole cosmos. Whether we believe it or not, whether we hate it or whether we like it, all the time it laughs on us. So how can I overcome the contradiction, or how can I face the laughing of the pleasure? Maybe it might sound little, I'm not clear about the idea of pleasure, but pleasure, how can you place the idea of pleasure within the tantric center, and how can I understand it, the yoga and tantra or the pleasure thing? This is the key. I am just giving the keywords, so if you can place in your ideas, it would be very beneficial. Okay. Now let's see if I've understood the question. First one concerns Prasiddhi. How can we establish? Prasiddhi is a huge subject, and it's going on over different schools. There are these different kinds of arguments. Some people say that when we're born, we know nothing at all. That when we're born, from the beginning, we have to acquire the ability to do everything and anything that we do. So this capacity to acquire ability to speak, for example, that comes through, they say, kind of practice. Mother is saying to the child, I don't know, bottle or table or milk, and he hears the word or she hears the word again and again, and thereby acquires its meaning. And when he's acquired a lot of these meanings together, he acquires the total sanketa, the convention, that of all the meaning of all these words, and that is language. Now, the problem with that is, of course, is that you have to be capable of understanding. You have to be capable, if I point to something, and in order to indicate I'm pointing to a table, or I want you to understand something by a gesture I am making. You have to have the capacity or the ability to understand. If I repeat the word again and again while holding an object, however many times I do that,
You cannot grasp that that word refers to the object unless you have an inherent capacity to do so. This is basically the idea behind prasiddhi. No? And it extends. Animals, even animals, how do the birds know that the time has come? You know, the birds that come here around Ganga, they come from Siberia. So when it gets warm, they fly all the way back. So how do they know the time has come? How do they know the way? No, instinct. How does the lion know that his nails, you know, are so dangerous? They're powerful. Yeah? So there are, so there is, if you don't accept that there is an inherent capacity in consciousness, in some sense, of understanding meaning, of capacity to understand, no? Then how are you going to understand anything? That's the basic idea. Now, you may like to offer me an alternative. So, prasiddhi is simply stating where we have to go, a limit beyond which we cannot go, of elimination, of ways of knowing, beyond which we go, in which we are no longer capable of knowing. If there are many languages, each language has its own convention. So who knows these conventions? The convention, Hindi, English, so on, there are different sanketas. So this kind of idea we find in Bhartrihari. This kind of idea we find in Bhartrihari. If so we proceed, there are two ways of going. Either we doubt everything. Say we doubt everything. I'm not sure of anything. I'm seeing smoke on the hill. Is that smoke? Am I really seeing it? Or is that a hill? How far away is it? Does smoke really have to mean that there's a fire? At every step, we doubt, we doubt, we doubt, we doubt. We proceed in that way. No. Then do we ever get to a point of certainty? So some people say that we don't. Like Hume in England and many Nyayikas, especially Nava-Nyayikas, the Buddhists, Madhyamika, these some form of, some people interpret the Naga also, idealist Buddhists, to say that we never have any, there are no valid means of knowledge. Okay? So you may proceed like that until you get to a point where, see, remember Parmenides. When I first came here, they told me that the idea of Maya, that the world is an illusion, is a very Indian idea. Okay? And then I learned a little more. I was very young then. I did my BA, MA here in this department in the 70s. So Parmenides, he was told by the Muse that if something exists, it must always exist. And if it ceases to exist, then the existence that it had is only provisional. So then he says, look around. Nothing exists forever. Therefore, he said, everything is illusory. So this is how Western philosophy begins. They used to call it the dawn of reason. Then another fellow came along, the Democritus. And he said, no, there are two realities, existence
and non-existence. So atoms are little pinpoints of existing things floating around in non-existence. And so the discussion went on and on. Now, Abhinavagupta and these people here, they have a view that may perhaps be unpalatable to some. They say this: however much you can deny, however much you may negate, you can't negate the one who is negating. Abhinavagupta puts it nicely this way. He says, why should I speak to those ghosts of Buddhists, Madhyamikas? Why should we talk to a ghost? He's even negating his own existence. So like this, either you follow a path of negation and take it all away, or you can follow another path that explains things equally well. Now this is like Pascal's wager. You don't believe God exists. I believe God exists. If you accept the existence of God, you gain many things. And if you don't, you lose many things. So I prefer, because I can't prove it one way or another, I prefer to follow this way of belief. Now Abhinavagupta doesn't say that. He says, who can prove? Utpaladeva says right at the beginning of his Ishvara Pratyabhijna, I am beginning a philosophical treatise to establish the existence of the self. I'm arguing against the Buddhists. And that self, he says, is Maheshwara. Now, who can approve or disprove the existence of Maheshwara, who is proved right from the start of when you begin to argue? Because there's somebody there who has a point of view. There's somebody there who's arguing. So it begins like that. And to the degree in which their idea is like this kind of certainty is a kind of nirvikalpa insight, non-conceptual insight. If I form concepts, this is a table, is not a table, or more complex concepts, there's one Brahman, nanasti kinchana, there's no duality, no multiplicity, or whatever, or simple concepts. No. I am always within the realm of discourse that can be denied or accepted, examined, and so on. And that can only lead to other vikalpa, prapancha, like a chain. But if we manage to have what you call anubhava, which is direct experience that's coming in nirvikalpa consciousness. That means seeing things directly, sakshat bhutam. We don't use that word because it reminds too much of Advaita Vedanta. But that direct perception of things, which doesn't involve conceptualization, we call the foundation of all perception. Now what we say, and this may seem very wrong to somebody else, I don't want to start fights. I've gone to places where people started fighting. I don't want to, I don't know why I get so, We say that you cannot have vikalpa unless you have nirvikalpa. To have a vikalpa, a conception of anything, whether it's of Advaita Vedanta or Kashmiri Shaivism or whatever you like, a table or a chair, it cannot be if you don't have nirvikalpa consciousness. Now that nirvikalpa consciousness, when there is a noetic act, I'm examining this through perception. And I come to know, through the activity of the senses, intellect, etc., the whole cognitive mechanism, this is a bottle. And then I rest satisfied. Or say,
then I enter that state of nirvikalpa, which I call nischaya. Now say it's a dark night, it's very cloudy, and there's a pole, and I'm not sure, or a tree. I'm not sure, is that a man or a tree? And I oscillate between these two alternatives. This is vikalpa. And until I can see, oh, okay, I don't know, the air clears, I get closer, and I say, oh yes, this is a man, or this is a tree. Until that nischaya comes, then I cannot rest in nirvikalpa. Right? So the ground of all certainty, nirnaya, or nischaya, is not created by vikalpa. It's the ground and foundation of any kind of notion that may be right or wrong. That's what we say. Now, you may be a kind of person who says consciousness doesn't exist. All right? Say Madhyamika Buddhists say consciousness doesn't exist in the way that you'd like to conceive it. Conception of consciousness will always be wrong. All right? Put it that way. Okay? Well, then, what are you going to... Who is there to say you're right or wrong? Namaskar, pranam. Do you understand what I'm trying to say? We can discuss this a long time. Now, the idea of prasiddhi is this. We are perceiving all the time. Huh? Now, each perception is arising and falling away. Because there is a beginning and an end to a perception. We can't catch it. Can you tell me when you just started having this perception or when it just come to an end? You may not be able to discern it, but there must be. And each perception leads to the next when it's come to a conclusion. And that conclusion is in consciousness itself. And it is from there that the next perception proceeds. This is the idea. Okay? Now we say, and Advaita Vedantins by this time are feeling a little sick in the stomach, but it's okay, we don't mind about them. We just give them an emetic and say it's fine. We say that consciousness is both vikalpa and nirvikalpa. Which the Advaita Vedanta would go, my God, how can you be both one and many? You know, you're either one or you're many, right? Is this two hands or one hand? You know, can it be just two hands and also just one hand at once? No. Can you have vikalpa which is diverse and super different and infinitely variable and at the same time also be free of vikalpa? How can the same thing be both? But we say we know that that is so because the act of perception is a complete, single, integral, dynamic activity that ranges from vikalpa, from nirvikalpa, through vikalpa, back to nirvikalpa. And the whole thing is a single, dynamic whole. And I'm sure all the Advaitins are there, they're all, nowadays we have guns and so on. In the past, all they could manage with swords and daggers. And now you say, wait a minute, we also make a distinction, even worse, that there are some vikalpa, there are types of vikalpa. Some of them you perceive the nirvikalpa underlying consciousness, free of concepts, and others you don't. I give you a common example, talking about pleasure. Let's talk about aesthetic pleasure for a moment, because just pleasure is a little, you know, is vague. Let's talk about listening to very nice music, you know, Bhimsen Joshi, Pandit Jasraj, whatever, somebody you like a lot, right?
And you're thinking, very nice, beautiful, I'm enjoying this. Now, where is that pleasure coming from? We believe that it's coming from the nirvikalpa consciousness. And you're having it at the same time, while there's enough vikalpa consciousness for me to know, look, I'm sitting in the concert hall or at Shankar Mochan and Pandit Jasraj is up there performing miracles of sound. Huh? So I can, emotions, all our emotions. Now, is an emotion a thought construct? I don't know whether Mishraji here will tell me, yes, that also, we're Advaitins, we don't have feelings. Because they're all Maya, right? But emotions are not vikalpas. Now, where are we experiencing emotions? We say we experience them in nirvikalpa consciousness. Now, listen this example. Vikalpas move through nirvikalpa. Nirvikalpa consciousness is like the sky. The sky. It has no limit, no extent. A vikalpa, you can say, it can begin, it can end, it can be about this, it can be about that. It's plurality. No two things the same in the world. No two vikalpas the same in the world. But nirvikalpa is like the sky. Boundless. Okay? And those vikalpas, now what we are experiencing in this room, 99% vikalpa. So then someone will leap up and say, oh, that means illusion. It's all a dream. Okay? But I would say to you that if you were conscious of the nirvikalpa, you would see these perceptions flowing through it, like yoginis flying in the sky of consciousness. And as it streams through the sky of consciousness, it's generating cognitive response and emotion. So sometimes when you listen to very good music, you feel you're flying. Don't take drugs to do that. You see what I mean? So that I don't know if just a few words to, I hope that's answered the question. मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग हिंदी में भी प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, हिंदी में भी बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर मार्क जो है उनको हिंदी में उत्तर भी दे देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है जी। तो भाषा की कोई बाध्यता नहीं है, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको आप जरूरत हो आप प्रश्न कर सकते हैं। शिवेंद्र विक्रम सिंह ने कुछ पूछना चाहा है, तो शिवेंद्र से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रश्न रखें। थैंक यू सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, आप ऑडिबल हैं, आप बताएं। ठीक है। ओके, इज इट फाइन नाउ? Go ahead. Okay. Your question, please. Okay, thank you. I'm humbly glad for this opportunity and I thank you all. So during the first leg of your lecture, sir, you gave this statement that to know that I know that I know, and then you concluded that statement by saying that infinite regress stops at some point when we are satisfied. Now, in the Shaivite perspective, in a system where consciousness is dynamic, can we be logical about this satisfaction? How do we know that this satisfaction is not Maya? One more question I would like to point out, that can we be objective in philosophical sense of the term regarding Maya in the Shaivite framework? If yes, what can be objectively said about Maya here? Thank you, sir. Sorry, what do I think about Maya? What can we say objectively about Maya? So first of all is, when do I feel satisfied? Let's begin with that one. Well, the Nyayikas will tell you when you do. I mean, you know, and I suppose some Nyayikas are never satisfied.
they will go on and on and on and on and on and on. And they'll be told by, people like Gangesha. He says, see, this is the result. The worldly life is like this. Frustrating. And if you're a Nayayika, I suppose it's more. So some of them are never satisfied. But what we say about satisfaction is that it's a kind of resting. ये क्या है कि तुष्टि यत्र यत्र मनो तुष्टि हाँ तत्र तत्र मनोदरे उसे कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ तो कैसे जानता हूँ कि मैं जानता हूँ तो मैं जानता हूँ कि जानता हूँ जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये जानता हूँ ये मैं जानता हूँ इत्यादि इसी तरह अनादि माने ये अनावस्था माने बन जाती है तो न्याय का लोग कहते हैं कि इससे कोई बात नहीं हम जहां तक हम जाएंगे जहां तक मैं तुष्ट हूं हाँ कि ये ऐसे है जैसे मुझे लग रहा है तो इसलिए आप लोग कहते हैं तो वो तुष्टि वो पृष्ठ रहा कि तुष्टि माने कैसे अनुभव की तुष्टि है हाँ कहा कब तक बने माने जो है हम प्रश्न करने करना पड़ता है कि हम तुष्ट हो जाए और वो तुष्टि कैसी है हाँ तो हम लोग कहते हैं क्योंकि हम लोग तांत्रिक है हाँ तो इसलिए इसको गलत मत समझ लीजिए कि यत्र यत्र मनो तुष्टि तत्र तत्र मनो धरेत हाँ तो तुष्टि की क्या मतलब है तुष्टि माने चित्त विश्रांति चित्त वृत्ति का विश्रांति तभी ही तुष्टि होती है यही है और ये और किसी से तुष्टि होती नहीं है हाँ अब तुष्टि जो है जो असली है तो उसको हम लोग कहते विश्रांति और इस विश्रांति में क्या होती है उस अनंत संवेद जहाँ कोई प्रतिबाधा कहीं नहीं है तो वो है विश्रांति और इसका वो कहते तुष्टि का इसका अनुभव हाँ तो हम संगीत समझ लीजिए मुझे संगीत पसंद है ना तो हम सितार जब बजाते सितार सुनते गाना सुनते नाच वगैरह देखते हैं तो हम खुश हैं क्यों हमारा वो जो दैनिक विकल्प का विश्राम हो जाते हैं और हम अपने स्वात्म संवेद में लीन हो जाते हैं हाँ और हम तन्मय हो जाते हैं इस संगीत से और उस तन्मयता से हम वो जो एकता है उस एकता में लीन होंगे तो उसको कहते हैं तुष्टि लेकिन क्या है कि जब वो संगीत खत्म हो जाएगा तो वो हमारा वो तुष्टि भी बंद होगा है तो इसी तरह भी है वो ज्ञान क्रिया में है? तो यही है तो मोक्ष क्या है कि वो ऐसे तुष्टि हम पावे ऐसे विश्रांति हम पावे जो वो अनंत है जो कभी खत्म नहीं होगा हाँ तो संगीत या कला हाँ कैसे और ज्ञान ये ज्ञान जो अपारमार्थिक ज्ञान भी जो पारमार्थिक की ओर ले जाते हैं हाँ इससे मैंने कुछ साधना करके उस संकल्प बना के कि ये मैं शिवो हम इत्यादि जो है का स्वात्मानुभाव हो जाए तो तब इस ज्ञान से इस कला इत्यादि जो है ऐसे तुष्टि मिल सकती है ये हम लोग का वो हम लोग के गुरु कहते हैं हाँ तो इसलिए हम लोग संन्यास अवस्था कुछ नहीं है हम लोग कोई सन्यासी है नहीं अभिनवगुप्त सन्यासी नहीं था शादी नहीं किया लेकिन सन्यास भी नहीं लिया और हम लोग कहते हैं कि हम जो है जो इंद्रिय का अनुभव है तो इस इंद्रिय का अनुभव है यदि मैं अज्ञानी हूं तो इससे राग बनता है या द्वेष हाँ वो हान उपादान ये सब चक्कर में आ जाते हैं लेकिन यदि मैं योगी हूं मतलब भगवान का माने या शिव जी का स्वात्म रूप के देखते हो हाँ ये सब इंद्रिय का चलाते हैं विकास होते हैं
तो तब माने जो है हमारे चित्त का विकास हो जाता है, वो हमें जो है निर्विकल्प संवित हम विश्राम मुझे मिल रहा है, और वो असली तुष्टि है, ये असली आनंद। तो इसलिए जितना और हम माने इंद्रिय चलाएंगे, हाँ, इसी यदि ऐसे भावना है, भावना की बात है, यदि ऐसी भावना है तो वो हमको मोक्ष की ओर ले जाएगा। हाँ, ऐसे भावना नहीं है तो तब जो है बंधन के ओर ले जाएगा। जिस चीज से जो है मूर्ख को माने नीचे अधस्तात् माने गिराते हैं, वो चीज ज्ञानी को हाँ ऊंचा कर देती। ये ऐसे एक तंत्र का एक परिभाषा है, इसको कहा जाता है। हाँ, तो यही बात है। तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा है, तो वो इच्छा किसके लिए है, ये प्रमुख बात है। तो यदि हम इच्छा है वो मोक्ष पाने के लिए, तो वो हम इस तरफ जो है जो हम करेंगे उस तरफ ले जाएगा। यदि इच्छा है और कुछ के लिए तो उस तरफ भी ले जाएगा। बस यही है। तो यदि ये होने के लिए क्या चाहिए कि एक तरफ जो है ये मेरा निर्विकल्प चेत संवित जो है शिव जी का होगा, मेरा सिर्फ नहीं है, पर्सनल ना हो, सामान्य यूनिवर्सल हो। तब ये हो सकता है कि ऐसे इच्छा बनती है उस माने जो है विश्वात्मक संवित में। हाँ, और वो इच्छा जो बनती है मेरा जो है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में। हाँ, तो वही इच्छा जो है वो राग है, वही इच्छा इससे कर्म वगैरह और उनका फल वगैरह इससे माने बनता है। इसलिए दोनों जरूरी है। यदि आप सिर्फ कहा कि हम पूरा विकल्प, पूरा द्वैत, पूरा दुनिया, पूरा माने जो है शरीर का काम वगैरह क्रिया बंद करे तब हम मोक्ष पाएंगे, हाँ, तो हम लोग कहते कि ये असंभव है। हाँ, क्योंकि आप जब तक जो है वो शिव का स्वरूप नहीं पाएंगे तो तब मोक्ष पा नहीं सकते हैं। और ब्राह्मण जो है वो विश्वोत्तीर्ण है, तो विश्वोत्तीर्ण के बाद विश्व माया होता है, और विश्व माया के बाद है वो जो दोनों है जिसी तरफ की आप कहा नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये सब होने के लिए ये होना चाहिए कि जो मेरा पैर जो है इस जमीन पर करे है, कि मेरा सिर जो है आसमान में लगे है। तो ये उसको कहते परमाद्वय, कि दो है लेकिन ये दो इसका प्रतिबंध नहीं है ना कि हम एक ले और दूसरा का छोड़ दे। हम सब स्वीकृत करेंगे एक पूर्णता प्रत्यभिज्ञा में। जैसे हम लोग का गुरुजी कहते हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ उन्होंने लिखा है जिसका नाम पूर्णता प्रत्यभिज्ञा। और माया तेरी छाया। हाँ, माया क्या है, हम कुमार गांधार नहीं है, नहीं तो हम एक मैंने सुनाएंगे कबीर। हाँ, कि जैसे एक बहुत बड़ा वन है, हाँ, और कई पैर, किसी पैर से एक पत्र जो है जमीन पर गिरा है, ना कोई जानते हैं ना कोई उसको देखे है, इसी तरह माया है। हाँ, अच्छा, शैव दृष्टि से माया प्रकृति की तरफ है। ये सब जो जो है, देखिए दो स्तर है, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध स्तर है मन जो एक 30 तत्व है, ये पृथ्वी से लेके माया तक। और शुद्ध स्तर से शुद्ध विद्या से लेके शिव तत्व तक। हाँ, और माया जो 21 स्तर पर है, 21 तत्व है, वह हाथ से मन जो है पूरा जो बाकी 30 तत्व जो नीचे जाके
धारा तत्व तक, पृथ्वी तत्व तक आ जाते हैं, तो माने जो है माया से विसर्जित है, समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग उसको माया ज्ञान भी कहते हैं, लेकिन इसी तरह है कि कैसे सब्सटेंस की तरह है, कैसे प्रकृति है सांख्या, तो इसी तरह शैव सिद्धांत में, ड्यूअलिस्ट शैविज्म में माया है, तो ये तो एक माया है। दूसरा माने माया उसको ये कहते हैं जो हम अद्वैय शैव दृष्टि से कि शिव भगवान जो सिर्फ एक तत्व है, शिव सिर्फ एक शिव जी है और उनका शक्ति उनके मने लीन है। तो यदि वो आपने से चाहे तो उनका एकता माने जो है प्रचन्न कर सकते हैं, वो प्रचन्न करेगा तो ये नानात्व मन का उत्पादन हो जाता है। तो वो जो है ये शिव जी के लिए तो वो माया नहीं है, मतलब इससे मोहित नहीं है, इससे अज्ञान नहीं है, वो जो ऐसे पैदा हुआ है इसको कहते महासृष्टि। जो सृष्टि जो माया तत्व से पैदा होता है वो तो साधारण सृष्टि है। तो वो जो महासृष्टि है जो सीधे भगवान से आते हैं, उसका स्वतंत्र शक्ति से के द्वारे से बनता है, तो वो मन जो है माया का तात्विक रूप है। तो वो जो हम लोग देखते हैं माया का अधस्तार, हम लोग माया के नीचे में रहता है, माया नीचे जाके कला विद्या राग काल नियति, तब उसके बाद जाके पुरुष है, प्रकृति बुद्धि या मानस अहंकार, फिर नीचे 5 इंद्रिय 10 इंद्रिय तन्मात्र महाभूत ना। तो ये सब जो है माया के नीचे, वो जो हम लोग देखते हैं इस तत्वों के द्वारे से, इस तत्वों के द्वारे से वो सब जो है इस शरीर से अलग है, इस मन से अलग है, इस इंद्रिय से अलग है, समझ रहे हैं? और वो तो लग रहा है कि हम बनाए नहीं है, और वो सब कर्म के वश में रहते हैं, कि ये हमारा का अनुभव तत्व के नीचे जो हो रहा है तो वो कर्म से है। मैंने किसी का भी कुछ किया अच्छा, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और वो प्रोफेसर जाजी इधर है, हमको क्षमता से सुनते हैं ना। तो ये सब है, एक माया के ऊपर माया नहीं है, वो भगवान के कर्म के वश में है नहीं। तो जो भी करेगा वो तो उसका कर्म नहीं कहते हैं, उसको कहते क्रिया। ये है ना। तो कुछ ठीक है, जवाब दिए थोड़ा कि माया क्या है नहीं। Yes. Thank you, Professor. We have an online participant, Doron, and he wants to ask a question. Yes, hello. Am I audible? Can you hear me? Hello? Yes, you are audible. Okay, thank you first of all for this amazing lecture. I would like to ask something about the last part. You said that Abhinava was highly influenced and valued the Trika Kaula and Krama, the worshipping of the goddess or goddesses. So I want to ask what then was his motive, both philosophically and historically, to put Shiva or Bhairava as ultimate consciousness and not the Shakti-oriented models of consciousness? Or in other words, what exactly did he change there and why? Thank you. Then he said something at the end, and why?
Yes, what exactly did Abhinava change and why in the model of consciousness from Shakti-oriented to Bhairava or Shiva-oriented? Why is our consciousness modeled on Shiva consciousness or Shakti consciousness? What he said. Why of the male god instead of the female goddess, like in Trika Kaula or Krama? He changed something there. I would like why, I'm sorry, I didn't understand. What did he say? Excuse me. Yeah. Doron, Abhinava, Doron, please make your question clear. Mhm. Sir wants to understand it first properly, then only he can address your question. Yes, why, yes. Yeah, first, you said in the last part of your lecture that Abhinava was highly influenced from Trika Kaula and Krama. Yes, so, Right. but in the Tantrāloka itself, he changed it a bit to be more oriented around Bhairava or Shiva. So my question is, why philosophically and historically did he moved it to be around Bhairava and not like the goddess-oriented tradition? Okay, all right. I understood the question. Thank you. Okay, answer is like this. You see, we are a secret tradition. Now we're in the philosophy department and talking freely. Huh? But this is not originally how it was. If you go to Nepal and you meet the Kaulas there, it's so secret they won't even tell you the goddess they're worshipping. Huh? I spent 20 years with that secrecy. Okay? Now, some traditions believe that secrecy is a bad thing. Lord Buddha said, I keep nothing hidden in the fist of my hand. Because the Brahmins at that time, they like to say, well, we know things that you people don't know. That's why we're Brahmins and you're not. Okay? So Buddha was against that. All right? अच्छा हिंदी में बात करें ऐसे प्रश्न रहा कि यदि हम कुछ बात कहें कि अभिनव गुप्त जो है वो काउलवाद से प्रमुख जो त्रिक का विस्तार होता है जिसमें ज्यादा काउल का असर है और जिसमें कम वो अभिनव गुप्त मानता है कि प्रमुख और सबसे श्रेष्ठ अनुत्तर त्रिक जो है जहाँ सबसे अधिक कौल सिद्धांत और कौल प्रक्रिया रहता है तो वो सज्जन पूछे ऐसे क्यों और फिर साथ ही साथ में प्रश्न ये रहा कि ये देवी कौल मतलब है शक्ति कुल मतलब है शक्ति तो यदि अभिनव गुप्त शक्ति को प्रमुख मानते हैं देवी को प्रमुख मानते हैं तो अभी कौन उसको माने शैव धर्म उसको कहते हैं और क्यों इसको प्रमुख मानते हैं अच्छा तो जवाब इस तरफ है अनेक माने बातें इसमें तो मन में अभी ये जवाब आया है कि देखिए हम लोग कहते हैं ये जो तंत्र शास्त्र है कुछ तंत्र विज्ञान कुछ तंत्र विधि विधान जो है खुले हैं सब लोग उसमें जो है देख सकते हैं हाँ और बहुत आसान से जो है इसमें भाग ले सकते हैं हर आदमी जो है वहाँ शिव मंदिर में जा सकते हैं हर आदमी जो है शिव पूजा कर सकते हैं शिवरात्रि में ठीक है तो लेकिन कुछ किसी का शैव संप्रदाय है जो उसको कहते गुप्त जो उनका विधि विधान रहस्य है गुप्त रहते हैं हाँ तो ये जैसे जो स्मशान की क्रिया है हाँ जैसे नंगा होके जो है वो सिद्ध योगिनी
जाते हैं, जप करते हैं साथ में, हाँ, वो तो गुप्त रहते हैं। या देवी है हमारी, तो हम उसको माने जो है मांस चराते हैं, शराब चराते हैं और शरीर का द्रव्य चराते हैं, तो उसका क्रिया विधि विधान सब 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 लोगों के सामने नहीं किया जाना चाहिए, तो उसको गुप्त कहते हैं। हाँ, तो ये जितने, तो हर काम, हर विधि विधान, अच्छा, तो एक सीढ़ी है शैव आगमों में, शैव विधि विधानों में एक सीढ़ी है कि हमारे अधस्तात् से ऊपर चलने के लिए संस्कार जरूरत है, दीक्षा जरूरत है। तो हम जो है सामान्य दीक्षा पहले लेते हैं, जो कहते समाय दीक्षा, तो हम इससे माने जो है सामान्य शैव हो जाते हैं। इसके बाद जो है यदि हम चाहे, यदि मेरा ये स्वभाव है, हम और कुछ दीक्षा ले सकते हैं जो विशेष दीक्षा है, और वही कई रीति से जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ जो है हम लोग की दृष्टि से सिद्धांत से चलो, वो वाम तंत्र से भरो, वाम तंत्र से दक्षिण तंत्र से भरो, दक्षिण तंत्र से कुल कौल मत, उसके बाद त्रिका आ जाएगा। और हर कदम जो है जाके जो है एक दीक्षा लेना चाहिए, नहीं तो एक कदम करके सिद्धांत से पूरा त्रिका में जा सकते हैं यदि क्षमता है। ठीक है, तो जितने आप गहरा में जाएंगे, जितना इस सीधी से चलेंगे, तो उतना और आपका क्रिया गुप्त हो जाएगा, और क्रिया गुप्त हो जाएगा, और दर्शन और जो है इसका दार्शनिक दृष्टि भी गुप्त हो जाती है। ठीक है, तो शिव से लेके जो है ये प्रकट है सब लोगों के लिए। हाँ, लेकिन दैवी जब जब आप ऊंचे चलेंगे इस सीढ़ी से, तो तब जो है क्या आपको मिलेगा कि शिव के बदले में देवी। जहां हजारे रुद्र है, 100 रुद्र है। हाँ, 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 जैसे शतरुद्रीय 100 रुद्र है, इससे अधिक है, तो इसी तरफ इसी जगह में 100 योगी नहीं आता है, 100 शक्ति आता है, 100 देवी आता है। वो जैसे रुद्र एक है जो अनेक हो जाता है, इस अनेक देवता बन के इसी तरफ जो है रुद्र की जगह में एक देवी हो जाती है, जिस शरीर से अनेक शक्ति पैदा होती है। ठीक है, तो हमें बहुत रुचि है रहस्य का, तो 40-50 साल से हम इसके पीछे दौड़ते हैं। हाँ, इसलिए हम सफेद हो गया, नहीं तो हम जवान रह जाते हैं और स्वस्थ और सब कुछ। हाँ, तो ये इसका माने दाम है इसका। हाँ, ठीक, तो क्या है, नहीं एक कुछ बोलना चाहते, अब बस हम समाप्त कर रहे जा रहे हैं। एक सेकंड, तो गुप्त से गुप्त, आप जानते हैं कि लोग बैठे हैं और गुप्त क्रिया करते हैं, वो ऐसे कुछ लोग हैं जो सहकारी है, जो उनको मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहे हैं? जो हमको, वो वेद यज्ञ में भी होता है, वैदिक यज्ञ में भी होता है, ये सब कुछ, सब कोई जो है, जो क्रिया अनेक से चल रहा है यज्ञशाला में, तो सबको नहीं जानते ये और लोग को करता है, और वो भी उसको गुप्त कहते हैं। ये सब मैंने दीवार उठा के कुछ गाछ से कि और लोग ना देखे, क्योंकि मैंने जो है पवित्र है, इट्स होली, इट्स सैक्रेड, immensely powerful,
हाँ, समझ रहे? तो बस बुद्ध पर आ गए। तो अभिनवगुप्त अपने गुरु से शंभुनाथ, और शंभुनाथ सुमति से, और शंभुनाथ सुमति से भैरवाचार्य से, एक माने संप्रदाय ऐसे बनी है कि जो त्रिकतंत्र के कुछ त्रिकतंत्रों में ये ऐसे प्रचार है, कहा जाता है कि काल संकर्षिणी काली जो है परा से अतीत है। तो हम जो परा पूजा करते हैं त्रिशूल पे, परा 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 परा, परा की माने ये बाल में, उस परातीत में, उसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर हम पूजन करते हैं, उसका नाम है काल, काल संकर्षित काल। वो क्या है कि वो काल कहती है, विकल्प कहती है, और उसको माने जो है खूब मांस चराना है, खून चराना है, शुक्र चराना है, स्त्री का रेतस चराना है। हाँ, आप नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ अभिनवगुप्त कर सकते हैं। वो लिखा है। हाँ, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन ऐसे जैसे अभिनवगुप्त है, सिर्फ एक दो है जो ये विधि कर सकते हैं, समझ रहे? तो ऐसे शक्ति इतना बनती है किसी लोग का, किसी गुरुओं का, ऐसे माने जो है क्रिया करके, हाँ, कि एक सिर्फ माने जो है शिष्य को देख के, शिष्य जिसका अधिकारी बन गया अपने भक्ति भाव से, अग्नि गुरु और शास्त्र की भक्ति से इतना ज्यादा बढ़े, इतना परफेक्ट हो गया कि एक सिर्फ उसको देखते तुरंत वो मुक्त हो जाता है। तस्मिन् काले गुरुना निर्विकल्प प्रभाषिते तत्रैव मुक्तासो यंत्रम तिष्ठति केवलम। गुरु सिर्फ कहते हैं तो वो मन जो है वो तुरंत मन मुक्त हो जाता है, और सिर्फ इस मशीन रह जाता है ना। तो हम लोग को उसको कहते आवेश, समावेश, संक्रमण से, और हमारा आवेश इतना और तेज है जितना और शक्ति है। इसलिए जो है उसको कहते हैं हमारे वो गुरुजी लक्ष्मण जो के, हाँ, the secret of Shaivism is Shakti. Okay. See? He's very keen to ask a question. Wow, I'm very curious to it. Yeah, thank you so much, sir. Yes. Yeah, it's truly, I'm very keen, I'm very moved by your lecture. This is a very enlightening and very charming lecture. And there is one point I'm very much intrigued with that. Because no matter how much intellectual and philosophical you become, you have to deal with two binary structure, namely good, bad, ugly and beautiful, transcendental and empirical, and sometimes metaphysical and sometimes worldly affairs too. So there is a dialogue in Theogony of Hesiod. He says that chaos first came into the being, then order came into the being, and they became assimilated with each other, and how the world began. But quite the contrary, the great Grandmaster Abhinavagupta says that order and chaos implicitly came into the being, and that how it governed the entire cosmic nature. So my question is that how a priori structure of your moral notion could be assimilated to the a posteriori structure of perception, because for having aesthetic perception one should have a posteriori structure as well. Because if I say that you are beautiful, then I must give you some example, some instance, or some idea of being beautiful, because merely an idea of beauty does not account the sense of beautiful as well in itself. As you say that nirvikalp perception, which opens the avenue for everyone, which is like a large sky, infinite one, it engrosses everything.
But I think that would be quite denial to the aesthetic perception, because aesthetic perception requires a subjective and objective affinity to each other. Otherwise, you would not be able to conceive an idea that this is beautiful. We might have some experience, we thought that this is beautiful. But for saying, and we might have some ecstatic pleasure by listening some music, but when it comes to the pass some judgment, we have to certain idea that this should be called as beautiful or some ecstatic one. So how Tantrāloka could reconcile to different binary structure, and that is subjectivity and objectivity. Thank you so much. ये कहता है कि जो है सही गलत जो है एक भेद विभेद है, और सुंदर और बदसूरत एक भेद विभेद है। तो कैसे ये जो भेद विभेद है जो है एकता में ले जा सकते हैं, और कैसे है कि ये एकता भी मान के ये मन जो है विवेचन कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो सकता, एक जवाब, एक बहुत सीधा जवाब, फिर थोड़ा आपको उस पर जो है विचार करेंगे। साधारण आदमी में आप जो सुंदर का अनुभव, सौंदर्य का अनुभव करते हैं, तो जैसे संगीत से या सुंदर चित्र से और कविता से और बहुत से और चीज जिसका वो सुंदर को नहीं लगता है, और बहुत से चीज भी है जो बदसूरत लगता है। तो ये रास्ता ऐसे रास्ता है कि हम ऐसे करें कि सब कुछ सुंदर करने लगे। विविधता एक रास्ता है, भयानक एक रास्ता है। हाँ, वो जो जिसका मन जो है रसा स्वाद नहीं करता है, भाया तो बहुत मन जो है बाय से डरते हैं। वो जो रसा स्वाद नहीं करता है, विविधता तो बिल्कुल द्वेष है, द्वेष ना। और रसा ऐसे यही है कि जो हम लोग साधारण दैनिक जो है अनुभव उसको बदलते हैं कि माने जो है सौंदर्य का शोभा का अनुभव बन जाता है। जो मन जो है, समझ लीजिए हम एक लड़की या बहुत प्रेम है, या आदमी बहुत लड़की एक आदमी से बहुत प्रेम है, इससे बहुत दुख है, लड़की बहुत दूर है, आदमी बहुत दूर है। हाँ, वो कवि बोलेगा कि इससे बड़ा दुख है नहीं। हाँ, तभी भी इतना कविता से बनता है उससे। हाँ, जो द्वंद्व है, जो द्वंद्व है, इसलिए हम लोग द्वंद्व से डरते नहीं है, क्योंकि द्वंद्व से एकता की ओर जाना, आप बहुत बुरे हैं, हमको आक्रमण करते हैं। हाँ, हम इतना बुरा नहीं है हाँ, कि आपको मैं जवाब दे सकता हूं। सिर्फ सहाते हैं या असमर्थ है, सिर्फ सहाते हैं। लेकिन हर बार जो है हम देखते हैं कि अच्छा और बुरा, तो ये सब भगवान का खेल है। कैसे? हाँ, तो वो जो अधिकांश में जो है हम उससे बहुत दुख है। हाँ, लेकिन ऐसे स्टार पर अब आ जाएंगे हाँ, कि पूरा विश्व जलने लगेगा। ये एक था रोमानिया का प्रेसिडेंट, वो रशियन से पकड़े है। हाँ, वो कम्युनिस्ट डिसिडेंट था वो, और एक छोटे से कमरे में बंद कर दिए 5-10 साल 15 साल, और उसको रोज रोज मारते थे, और उसको रोज रोज उसको कहते कि कम्युनिज्म बहुत अच्छा है। हाँ, और वो भगवान की भक्त था, और वो नहीं कहते नहीं हम भगवान छोड़ेंगे नहीं कम्युनिज्म के लिए। वो आखिरी में उसको छोड़ दिए,
और एक विवरण कहते हैं आपका अनुभव कि ऐसे एक दिन आ गया कि हमारा पूरा ये कमरा जो है जलने लगा, और मुझे लग रहा है कि इस छोटे छोटे से जगह जो है सारे विश्व सामने है, वो कि भगवान इतना महान है हमारे सामने आ गया। समझ रहे हैं? इसको कहते विमर्श, इसको कहते अनुग्रह। ये परात्रिंशी का विवरण है कि सबसे शुरू ये देवी की बात भी कर रहे हैं। कहते हैं कि शैव लोग सब मानते हैं कि शिव जी वो पंचकृत्य विदाई है, कि पंचकृत्य करते हैं, का कृत्य है क्या करना उनको, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान बुरे जन को और अनुग्रह। तो फिर अभिनवगुप्त उसको कहा के कहते हैं कि अभी हम परात्रिंशी का विवरण ये जो है शास्त्र स्वर्ग से आया मन देवी को उसको ये भगवान ने बोलने लगा, ये सब विश्व की अनुग्रह की फैलने के लिए। और जब इसमें जो है कैचरात्व सिद्धि हो जाएगी, तो कैचरात्व सिद्धि में क्या होती है कि आप जो है इस निर्विकल्प संवेद, निर्विकल्प का आसमान जो हो रहेंगे, तो जो बुरा और जो अच्छा, जो दुख और जो सुख, जो है जो उपदय, आपको दोनों बराबर लगेगा। ये इन लोग का विश्वास है। आप कहते हैं आज तो हमको नहीं हो रहा है, तो ये कहते हैं कि ये जो है लक्ष्य है, ये जो है लक्ष्य है। वो कहते हैं कि ये लक्ष्य ऐसे मूर्खों का है, असंभव है। तो वो जवाब ये देगा कि हमको देखो। ये जवाब अभिनवगुप्त देगा, हमको देखो। समझ रहे? और हाँ, करोड़े में एक लेकिन है ना। तो इसके जो एथिक्स जो आप कहते हैं निर्विकल्प संविद से आधार पर है, उसके एथिक्स जो आप कहते हैं ये शिव भगवान होते नहीं है, असली एथिक्स होते नहीं है। जो अकेला कहता है अपने काम अपने पाप कहते हैं, तैतरीय उपनिषद में लिखा है। ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव यह है कि जब तक मोक्ष नहीं पाएंगे, सुख और दुख ऐसे इस लहर पर हम लोग तैरते रहेंगे। और सुख और मोक्ष हो नहीं सकता है यदि एकता नहीं है। किस चीज का? सुख दुख का, अच्छा बुरा। क्या मतलब है? मेरे लिए आप बहुत बड़ा पापी है, भगवान के लिए ये तुमका बच्चे है। यहाँ क्या होता है ना, लड़का एक बार चोरी किया हमारे घर में, तो हम उनका पिता के गया है, वो पिता वो जानते रहे कि चोरी किया, लेकिन कहते क्या हमारे बच्चे को बदनाम बना रहे हो। उनका बहुत गुस्सा। तो हम सोचे कि आप बाप है तो उसको मैंने जो है कुछ शिक्षा नहीं सिखाएंगे, तो वो हमको समझ में नहीं आया उनको। समझ रहे? तो आप जो फीलिंग्स है आपका, हमारा अद्वैत परमाद्वैत एक कैरेक्टरडक्शन है जो शायद अद्वैत में नहीं है। उसको कहते इमोशंस। हम लोग का जो चित्त है, संवित है, एकता है, एक रस का समुद्र है। और जिसका ज्यादा रस का स्वाद करता है वो भगवान के पास आते हैं। भक्ति क्या है? रसास्वाद। भक्ति क्या है? अब नारद भक्ति सूत्र पढ़िए, हाँ, कि कभी नाचता है, कभी गाता है, अश्रुपात होता है, ये सब जो है वेपन, ये सब लक्ष्य है क्या? अवेश का, शक्तिपात का, हाँ, और रसास्वाद का। ये तीनों भी साथ में सब चल रहा है साथ। तो इसलिए और मैं समापन यहां कर रहा हूं, आवर एथिक्स
are built upon aesthetics. And our aesthetics are built upon experience of that ultimate reality. क्योंकि क्या है कि जितना बुरे हम हो, जितना मन संकुचित मेरा चित होगा, भगवान का अनुभव कभी हमको छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि ये नहीं रहता है तो आप बिल्कुल कोमा में होते हैं, चित है नहीं, हम मरे हुए हैं। ये यदि हमसे पूछते आप पढ़िए शिव स्तोत्रावली, ये कहते हैं हम शिव 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 का नाम है। वो तो एक फिलोसोफर था उत्पल देव, वो जिंदाबाद उसको पढ़ेंगे तब भी उसको पढ़ नहीं पाएंगे। एक्सक्यूज मी, हम भी, आप मत सोचिए। और फिर वो कहते हैं कि हम हमारे जीव पर शिव का नाम शिव 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 रतन है, तभी भी हम जो है इसका, इस इंद्रिय का बर्तन से, इस इंद्रिय का प्याला से हम उसका नाम का रस पीते हैं। तो ये जो है निर्विकल्प समवेत है, ये परमाद्वयवाद का रसवाद है और ये रहस्यवाद है। और ये जो ये है, इसलिए हम लोग देवी मानते हैं प्रमुख, क्योंकि देवी विमर्श है। हमारा विमर्श क्या है कि ये भगवान का ये सब विस्फार है और इसका मन जो है रसास्वाद हम करते हैं ये देवी और शक्ति के द्वारा में। ठीक, okay? Now, we have an online participant, our senior colleague, Professor D.A. Gangadhar, who was in this department. He wants to ask a question. He's online. Okay. Sir, आप बताएं क्या question है आपका? Am I audible now? Yes, yes, you are. Okay. Thank you so much, Dr. Rajesh. I have very two small queries rather. Let me ask Dr. Mahat. I know that he is very deeply gone to the Kaula, Bhairava, Shiva, and with regard to the Abhinavagupta and so many Shaivites. So my query is rather regarding Kaula, Bhairava consciousness and Shiva consciousness. First query is that is it possible for a Kaula to come back to the real human being or no? Other one, that is Bhairava consciousness similar to that Shiva consciousness? Regarding 2 points, I would like to have his clarification rather for my sake. Thank you. अच्छा, हम समझ गए कि वो सज्जन पूछ रहे हैं कि भैरव कॉन्शियसनेस या शिव कॉन्शियसनेस से कोई अंतर है। अच्छा, तो बहुत संक्षिप्त जो है जवाब यही है कि 36 तत्व जो है सिद्धांत का सिद्धांत है। शैव सिद्धांत ने 36 तत्व मानते हैं, हम लोग माने जो है 38 तत्व मानते हैं, क्योंकि 37 तत्व उसको कहते परम शिव या भैरव और 38 तत्व उसको कहते अनाख्या या देवी। तो शिव तत्व जो है निष्कल है और विश्वोत्तीर्ण है और 37 तत्व जो है विश्व माया है। हाँ, तो हम लोग विश्व माया से विश्वोत्तीर्ण ज्यादा ऊंचा मानते हैं। और उसके बाद कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं कि ठीक है आप 37 बना दिए तो 38 भी हो सकता है, 39 होगा, 40 हजारे तक का अंत है। तो कहते हैं एक और जोड़ेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं अनाख्या, तो उसको कह नहीं सकते हैं कि भैरव है या शिव जी है,
कि विश्वमय है या विश्वोत्तीर्ण है। हाँ, और ये देवी का स्वरूप है कि देवी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कैसी है। हाँ, जब कहेंगे कि विश्वमय है तो तब जो है 37 में जाएंगे, जब कहेंगे कि विश्वोत्तीर्ण है 33 में जाएंगे। और ये सब खेल जो है विमर्श का है। सी सब्सटेंस, द्रव्य, in English substance means more than dravya in a way. You can have a model of oneness like clay in a pot, जैसे मृद है और घट। हाँ, मृद से बहुत से सारे किस्म का घट थाली वगैरह बना सकते हैं। हम लोग जो है उसको चित्त ऐसी तरफ नहीं मानते हैं। हाँ, कि जैसे द्रव्य या अज्ञान या माया जैसे द्रव्य। हम लोग कहते हैं, हम लोग सोचते हैं ये जैसे जब सितार बजाते हैं कि हम रे लगाया या गा लगाया या माँ लगाया, क्यों लगाया, कैसे लगाया। Hello, Dr. Mark. Hello, can I intervene? Can I intervene? Hello. Yes, yes. I'm not going to this large, long discussion as you are telling us. I want very simple answer, or rather clarification, whether the Kaula can come back to the ordinary stage of human being. And secondly, regarding Bhairav consciousness and Shiva consciousness, are they very similar or the distinct, different? That's all. कि Bhairav, That's a pointed answer. Whether Shiva consciousness and Bhairav consciousness, they are one and the same thing. Can I speak again? Whether a person who is found can he May I repeat again? at the level of the ordinary human being. अरे he is ordinary human being. आप ordinary human being बन सकते हैं? हाँ, आप ordinary human being है क्या? अभी मैं हूँ ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी नहीं हूँ, ऑर्डिनरी। यहाँ में कितना ordinary human being है बताइए? मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ। तो ordinary उन लोगों को क्या है? Ordinary means common man, general man. Kaula is a very high stage of sadhaka. To Banaras and we'll go and worship Mother Kali in Smashan. Hello, Dr. Mark. आइए मेरे साथ। हाँ। No, my question was only this much, that can a kaula, क्या कौल से पुनः वो कभी कभी अपने कॉमन मैन की स्थिति में आ सकता है, या कौल ही रहेगा, या कौल के ऊपर जाएगा? कौल एक साधारण आदमी व्यक्ति बन सकता है कि नहीं बन सकता है? Only very simple. You know, आप साधारण आदमी बन सकता है। साधारण आदमी नहीं। कौल क्या है, कौन है? जो माने आदमी का मांस खाते हैं? No. That I don't believe. That I don't believe. Kaul is the highest. बोलिए, हम लोग सब बड़े हैं यहाँ जो है। हाँ, कोई बच्चा नहीं है। हाँ, ठीक है। आप दो आया कर्नाटक से। ठीक है डॉक्टर राजेश। और वो लोग के पास था। ठीक है डॉक्टर राजेश। कि माने मणिकाली का घाट से ये लाश ले सकते हैं, तो लाश का टुकड़ा ले लाते हैं और माने जो है उसको आके खाते रहे। हाँ, तो वो कौल है क्या? तो हम आपको ये जो है थोड़ा मदद करेंगे ना। ठीक है। हम तो ये दो लोग यदि माने आदमी का मांस खाने बंद करेगा तो नॉर्मल आदमी हो जाएंगे। हाँ, शाकाहारी बनेगा तो नॉर्मल आदमी हो जाएंगे।
यस, नहीं, ये कंपैरिजन ठीक नहीं, ये कंपैरिजन ठीक नहीं। ये है कि ये इसको क्या कहते हैं कि लोकाचार इष्टु वेदिका, क्या है इसको, ये लोकाचार इष्टु वेदिका, हाँ अंतशाक्ता पाई शैवा लोकाचार इष्टु वेदिका। तो ये नॉर्मल है ना वैदिका, यदि इंडियन है? ठीक है, ठीक है। Now we are really running out of time, and I request our president, Professor Kamlesh Jha, to give his presidential remarks. Sir, आए और आप अपने कुछ विचार दें। मुझे इस रस से हटा दे रहे हैं, जिस रस में मैं अभी तक डुबकी लगा रहा था, उससे हटा रहे हैं। अच्छा, समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। आदरणीय मिश्र जी, डॉक्टर साहब, मार्क जी, झा जी, यहाँ बैठे हुए ऑनलाइन जुड़े हुए विद्वज्जन, हमारे छात्रगण, छात्राएं, मातृशक्तियां, काशी में कश्मीर उतर आया है। अभी हम लोग इसका आनंद ले रहे थे। जिस अद्वैत की चर्चा, सारे द्वैतों की चर्चा के साथ हम लोग रस घोल करके पान कर रहे थे, वहां कुछ पता नहीं चल रहा था। वक्ता कोई है, श्रोता दूसरा दल है। श्रोता में भी बहुत सारे विभिन्न लोग बैठे हैं, विभिन्न अवस्थाएं हैं, उम्र हैं, प्रबोध हैं, कहीं कुछ भान नहीं। हम लोग जो नवरस रुचिरा स्थिति होती है उसमें डुबकी लगा रहे थे। नवो रस से रुचिरा भारती हैं। बार बार हमारे डॉक्टर मार्क, जब मैं यहाँ 85 में आया था तो इनको बोलते सुनता था तंत्र पर। मैं उस समय तंत्र में बच्चा था। अभी मुझे पता नहीं अब हमारे दोनों लोगों में उम्र किसकी ज्यादा है, क्योंकि ये तो कौल हैं, इनकी उम्र का तो पता चलेगा ही नहीं। तो लेकिन उस टाइम से मैं इनको देखता हूं, जहां सभा हुई वहां ये स्वयं पहुंचते थे और स्वयं पहुंचने के बाद फिर इनको बुलाया जाता था। स्वयं पहुंचने का रस इनके अंदर था। और जब लोगों को पता लगता था जो ये इतनी गहराई में है, कितनी गहराई में, हंसा रहे थे। और हिंदी में बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ा हिंदी के पद अशुद्ध भी होते हैं, उसमें उतनी देर में हम लोगों का प्रबोधन और अच्छा से हो जाता है। तो इस कारण से और भी अच्छा लग रहा था। और अंग्रेजी वाले में तो मैं टटोलता रहता था, जो कहाँ से कुछ पकड़ाए, जो मैं डॉक्टर मार्क को थोड़ा सा पकड़ूंगा, आप यहाँ ये कैसे बोले। पर इन्होंने पहले ही कह दिया जो कभी कभी मैं हिंदी में बोलूंगा, क्योंकि हिंदी में हमारी जानकारी में वो शब्दावली नहीं है जिसको मैं व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात। जब मैं ठाणे मुंबई में बुलाया जाता था तो ये लगभग 97-98 की बात थी। तब डॉक्टर मार्क जी को हम देखते थे छिपते हुए कहीं से निकल रहे हैं, माने हमको झाजी न देख लें, ये इनका भाव रहता था।
ये भाव कहाँ से? किसी के द्वारा आरोपित इनके ऊपर था। थोड़ा आप झाड़ी से छिप कर रहिएगा, तो ये छिप करके आते थे, पर ये सुनते जरूर थे और फिर बोलते भी थे। तो हम उस टाइम से आपको जानते हैं। इस बीच में कभी कभी ये खेल करते हैं। तो 5 वर्ष पहले हमसे उन्होंने कहा कि हमारा डॉक्टरेट हो गया और कई बच्चों को हमने आपके अंदर करवाया कार्य, अब मेरा डिलीट वाला कार्य आपके अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाए। मैंने कहा आपको डिलीट के बंधन में डालना मुक्त पुरुष को यह उचित नहीं लगता है। महामना जी के यहाँ डिलीट की प्रक्रिया बहुत कठिन है और आप एकदम स्वतंत्र मंथान भैरव, आपने नेपाल में रहकर कुब्जिका तंत्र की खोज की, मंथान भैरव का अन्वेषण किया और क्या शाक्त क्या शैव सारे दर्शनों को रसास्वादन के लिए आप जैसे कोई समाधि की स्थिति में पहुंचे और कोई शास्त्र पढ़े, शास्त्रार्थ करे, दोनों में जो अंतर होता है, तो हमने देखा डॉक्टर मार्क रसास्वादन करने के लिए समाधि की स्थिति को स्वयं खोजना। और जो उत्पल देव का पहला श्लोक है, जब वह ईश्वर प्रत्यभिज्ञा की रचना करने लगते हैं तो वो कहते हैं कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यम। भगवान महेश्वर का दास्य भाव कैसे प्राप्त हो गया पता नहीं मुझे, क्योंकि शैव शास्त्र का सिद्धांत है कि आप लाख प्रयत्न करिए आपको मुक्ति मिलेगी, प्रयत्न से संभव नहीं है। ईश्वर का अनुग्रह हो गया, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ, मैं एक गांव का व्यक्ति हूं, एक व्यक्ति गेहूं का बोझा ढो रहा था, खेत से खलिहान ला रहा था, बीच में एक पेड़ था छांव, वहां रखता था और फिर वो खलिहान पहुंचता था। तो कई मजदूर थे साथ में, तो उन लोगों ने वहां रखा और एक जो छोटा उम्र का था उसका थोड़ा वजन ज्यादा लग रहा था, वो बोझा को पटका और लोग तो बैठे, वो नाचने लगा। विषहर भगवती उनमें प्रकट हो गई, विषहर भगवती। अब वो कैसे आई उसने कुछ यत्न नहीं किया, लेकिन विषहर भगवती आई और वह झाड़ने लगा, मंत्र बोलने लगा। कुछ ही देर में एक व्यक्ति ने कहा कि इसको सांप काट लिया है। अब वो मुश्किल में था कि इसका विष कैसे उतरेगा, और अभी विषहर भगवती इसके ऊपर आ गए और इसने झाड़ना शुरू किया, झाड़ दिया, चला गया। अब उसके ऊपर आफत थी, 4 किलो अनाज मिलता था। अब वो रात को भी सोया है तो सांप किसी को काटा है तो उसके पास पहुंच जाए, उसको जगाए। अब वो मुश्किल, अब वो कल जाएगा काम करने, अब रात में आ गया, दिन में आ गया, खाना छूट गया। वो विषहर भगवती, उसने कहा देखो विषहर भगवती, हमको तंग करोगे, हमारा भोजन कैसे मिलेगा? कहा अरे तुम मंत्र पढ़ो। एक कुआं खुदवा दिया था हमारे यहाँ के ठाकुरवाड़ी के महंत जी ने, क्योंकि उसके 8 भाई थे और बड़े बलिष्ठ खेती का काम करते थे। ठाकुरवाड़ी में खेत था, उस पर वो काम करवाते थे, उसके यहाँ कुआं खुदवा दिए थे। कहा तुम विषहर मंत्र पढ़ो, बाल्टी में डाल दो, ये पानी ही गिरा देते हैं कुआं में। अब किसी को सांप काटेगा तो ये वहां से पानी निकाला, पी लिया, अब जगाने की नौब। ये है अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह हो जाता है। यह तो क्या भारी फल मिला कि लोगों को शांति मिली। कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यम, पर इसकी जब घनीभूतता, गाढ़ता आती है तो जनस्याप्युपकारम इच्छन, आप में यह जो दास्य भाव है, दास्य की व्याख्या करते हैं स्वयं अभिनवगुप्त पाद, कहते हैं दीयते सर्वम असमय असौ दासः। भगवान शिव सब कुछ माने अपने सारे वैभव को जिसको दे देते हैं, यह अनुग्रह। और अनुग्रह शक्ति के लिए आपको आश्चर्य होगा, रामेश्वर झा जी की चर्चा हमारे गुरुजी थे, और रामेश्वर झा जी को जोशी जी ने कहा कि हमको थोड़ा शैव चमत्कार दिखाइए। गुरुजी को वो शिव के समान मानते थे। किसी बच्चे के लिए एक वस्त्र आएगा तो उनका भी वस्त्र एक आवेगा, वो चाहे किसी को दे दें। इस तरह जैसे भगवान को भोग लगा करके ही तब लिया जाता है, इस तरह से उनका। तो उन्होंने कहा थोड़ा हमको शैव चमत्कार दिखाइए। तो गुरुजी कश्मीर के लिए चले।
जहां बस में चढ़ते, एक बस को छोड़ने के बाद दूसरी बस में, तो वहां लघुशंका करने के गुरु जी के पास एक झोला रहता था, जल रखते थे, लघुशंका के लिए बैठने लगे। तो जोशी जी जो साथ में गए थे वो थोड़ा आगे बढ़ गए, लघुशंका के साथ एक साथ तो खड़ा रहेगा नहीं। जब उठे तो उतनी देर में ही भगवान शिव आ गए, एक ब्राह्मण वेश में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ भिक्षा मांगना चाहते हैं, आप पहले हाँ कह दीजिए तभी हम मांगेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि आपको जो मांगना हो, हमारे साथ करोड़पति है, आप मांगे हम कह देंगे दे देगा। उन्होंने कहा जो मैं मांगूंगा उसमें वो कौड़ीपति है, करोड़पति आप हैं। कहा हमारे लिए तो कुछ अधेय है ही नहीं, कथन चिदासाध्य महेश्वरस्य दास्यम। तो उन्होंने कहा कि आपसे यही प्रार्थना है कि आप शैवागम के ग्रंथों का अनुशीलन करिए, हमारे पास लाइब्रेरी है। एक सन्यासी थे, वो एक बड़ी लाइब्रेरी शीश महल बनाकर थे और सारी पुस्तकों को रखे हुए थे। वह ब्राह्मण शिव साथ में लेकर के गए और कहा बस यही आप इसका स्वाध्याय करिए और इसको जगत में बांटिए। उसके पहले गुरुजी वेदांती थे, वेदांत का सारा अनुभव था, एक कम्बल रखते थे और बड़े त्याग से। पर जो परम शांति है, क्योंकि वेदांत का जो शास्त्रार्थ भाग है वह बौद्ध दर्शन से, बौद्ध धर्म से सनातन धर्म जो है ठुकराया जा रहा था। तो जब उन्होंने सर्वम शून्यम शून्यम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम इस आधार पर फिलॉसफी तैयार किया, तर्क तैयार किया, तो न्याय वैशेषिक मीमांसक ये सारे परास्त हो गए। तब भगवान शंकराचार्य, वो भगवान शिव के ही अवतार हैं, और उन्होंने देखा कि अब क्या हो, तो धर्म विप्लव को हटाने के लिए अध्यास मार्ग को चुना। अध्यास, आभास और प्रतिभास, ये तीन, जैसे यहाँ मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम च गीता में भगवान कहते हैं। दुर्वासा जी के शिष्य हैं श्री कृष्ण प्रभु, और उन्होंने आगम तंत्र के सिद्धांत को पढ़ा है, आगमिक ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता, यह भी एक पक्ष है। तो स्मृति, ज्ञान और अपोहन, आप देखें ज्ञान पक्ष को लेकर के भगवान शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। स्मृति, जो प्रत्यभिज्ञा में स्मृति प्राधान्य है, क्योंकि जो अनुभव करेगा, जिसको ज्ञान होगा उसी को स्मृति होगी, नियम है। बौद्धों ने कहा आस्था निवृत्ति के लिए आत्मा भी असत, आत्मा भी एक क्षण में जो है वो दूसरे क्षण में नहीं है, तब फिर कर्म का क्या सिद्धांत रह जाएगा, जो कर्म और कर्म फल का भोक्ता। तो उसको भगवान ने, शंकराचार्य जी ने कहा कि जिसको अनुभूति होती है उसी को स्मृति होती है। यदि अनुभव काल में एक आत्मा है, स्मृति काल में आत्मा बदल गई, तब तो देवदत्त की अनुभूति से यज्ञदत्त की भी स्मृति होने लग जाएगी। इसका जवाब बौद्ध दार्शनिकों के पास नहीं था, इसलिए अध्यास को अपनाया। अध्यास के आधार पर जगत मिथ्या का वर्णन करते हुए उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों को परास्त किया, पर स्वयं वो काश्मीर शैव आगम के सिद्धांत को जीते थे भगवान शंकराचार्य। और जो आप बार बार चर्चा करते हुए डॉक्टर मार्क जी ने बतलाया, मुझे इतना आनंद आया, और मैं थोड़ी देर के लिए जब बाहर जा रहा था तो थोड़ा इन्होंने मुंह बनाया, मैंने क्या ये बीच में उठकर चले गए, लेकिन उस मुंह बनाने में भी इनका आनंद नहीं गया था, इनका हर्ष नहीं गया था, इनका स्वरूप विकृत नहीं हुआ था भीतर से, केवल थोड़ा ऊपर टेढ़ा मेढ़ा हुआ। तो मैं देख रहा था कि कितने रस में घुले मिले हैं, और अभी तो सब के सब हंस रहे हैं। गंगाधर जी के प्रश्नों का जवाब देना, गंगाधर ही हैं तो फिर क्या कहना है। उन्होंने कह दिया फिर ठीक है अब हो गया, ठीक है अब हो गया। तो कौलात परतरम नहीं, इस बात पर बार बार आप बल दे रहे थे, कौलात परतरम नहीं का क्या सिद्धांत है। हम लोग जो अभी शिवरात्रि में देख रहे थे, यहाँ संकाय प्रमुख होने के नाते एक अवसर मिला जो भगवान विश्वनाथ के अभिषेक में, और वो शिव पुराण की पूर्णाहुति थी, मुझे भी बुला लिया गया, तो बड़ा दिव्य पूजन हुआ, हवन हुआ। और मैं लौट रहा था तो यहाँ रोहितेश्वर महादेव और जगह जगह सारी जनता
इस सारी प्रसिद्धि की बात आप कर रहे थे। ये प्रसिद्धि क्या है? प्रकृष्टा सिद्धि ही, एक तो कर्मधारय कर लीजिए, और दूसरा प्रकृष्टा सिद्धि यत्र, रोहितेश्वर महादेव चलो, जहां जहां महादेव जी हैं चलो, उनका त्रिशूल दर्शन हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, कुछ फल पुष्प चढ़ा लें, लगा जैसे साल भर के जितने दुख दैन्य थे वो मिट गए और अगले साल तक के लिए हमेशा प्रसन्नता ही प्रसन्नता आती रहेगी, अभ्युदय ही होता रहेगा। इस भाव को लेकर भारतीय जनमानस दौड़ रहा है, भाग रहा है और कितना आह्लादित हो रहा है। इस आह्लाद का अभी तो माघ महीने में जब प्रयाग में जाकर और शीताशीत जल प्रवाह में स्नान करना पड़ता है, यमुना जी और गंगा जी, जब गए विदेश तो पूछा लंदन में महामना जी से, आप कहाँ के हैं? तो उन्होंने कहा प्रयाग के। कहा प्रयाग में इतनी भीड़ कैसे होती है? तो पंचांग रखे थे, हमारे यहाँ पंचांग अनुभाग है, पंचांग रखे थे। उन्होंने कहा बस इसमें ये लिखा है कि ये जो है मकर संक्रांति है, इसमें स्नान का योग है। बस इतनी ही पंक्ति से सारे लोग इतनी आस्थावान है यहाँ पहुंच। कहा इतने लोग इतने से पहुंचते हैं? तो कहा आपको क्या पता, इसलिए भारत भारत है और इस भारत के भारत तत्व को देख रहे हैं, समझ रहे हैं डॉक्टर मार्क। मैं आज नहीं जानता इनकी पत्नी अभी है या नहीं है, लेकिन 10 वर्ष पहले मैं जानता था उनकी पत्नी, वो वहां भी रहती थी, कभी कभी यहाँ आती थी और वो कहती थी कि थोड़ा समय हमारे लिए तो निकालो। तो ये निकालते थे, वो जो बजाते रहते थे उस सबको छोड़कर कहते थे थोड़ा सुनो, हमारी शक्ति जागृत हो गई है, थोड़ा समय। दूर भी रहती थी तो उनको ये याद करते रहते थे। आज की तिथि में मुझे पता नहीं है जो उनका शरीर अभी है या नहीं है ना। देखिए तब तो ये कौल रस का मतलब है जो शिव और शक्ति युगल दोनों वृद्धावस्था को आने न दे, तो ये इनमें घट रहा है, यही कौल रस है। तो इस कौल रस को गंगाधर जी का मुझे पता नहीं है कि वो अकेले हैं कि दोनों हैं। दोनों 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 तो दोनों इसका लाभ उनको भी मिलेगा। और बहुत बहुत हमारे छात्र जो धारा प्रवाह समझे और उसमें प्रश्न कर रहे थे, जिज्ञासु का बहुत बड़ा महत्व है। शुश्रूषु होना, हम लोग शुरू में समझते थे, जो हमारे गुरुजी थे सेवा बहुत लेते थे, कहते थे शुश्रूषा का मतलब है खूब सेवा करो गुरुजी की। जब रामेश्वर झा जी गुरुजी से भेंट हुई, उन्होंने कहा श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा और तत्कर्ता शुश्रूषु। तो शुश्रूषु होना माने सुनने की इच्छा होना। इतने लोग और जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं इस तरह से इस रस में डूबे हुए हैं, क्योंकि ये आत्मरस है, चिदरस है। चिदरस का मतलब होता है जहां सारा संसार और इसके जितने रस हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं नमे द्वेष रागव, द्वेष और राग दोनों ही नहीं है। माने एक प्रतीक ले लीजिए, कोई भी द्वंद्व हमारे पास नहीं है। और उत्पल देव को आप सुने, निवेदित मुपादत्स्व रागादि भगवन मया। हे भगवान, हे शिव, मेरे द्वारा निवेदित क्या है? राग आदि का। हम एक द्वंद्व को नाम लेंगे गड़बड़ बच जाएगा। राग आदि जिसको दोष समझा जा रहा है, भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो शिवाष्टक में, विश्वनाथाष्टक में बोलते हैं रागादि दोष रहितम स्वजनानुरागम। रागादि दोष तो नहीं है भगवान में, लेकिन स्वजन के प्रति अनुराग है। अब ये स्वजन के प्रति अनुराग, उनका कौन परिजन है और कौन स्वजन है, तो आपने बहुत गुरुतः शास्त्रतः स्वतः इन बातों की चर्चा आपने की है। उसको कई बार उदाहरण देकर समझाए। जो गुरु से, शास्त्र से और स्वतः माने अपने उद्योग से, हम अपना उद्योग न करें। भगवान अभिनव गुप्त पाद बहुत डांटते हैं, जो कहता है कि आप पड़े रहेंगे देने वाला देगा, दास मनुका कह गए, इस पर विश्वास नहीं करते। बड़ी बात लगाते हैं, कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति उसके मुख में भी कुछ दे देगा, उसका अभिप्सित रस, तब भी उसका पान स्वयं उसको करना पड़ेगा। तो कर्तृता उसमें होनी चाहिए। और आगम का मतलब है जो सर्वकर्तृता जो शिव में है, और वही सर्वकर्तृता जीव में भी है। लेकिन माया, माया का अर्थ है
लोग कह देते हैं जो या माँ माने जो है नहीं, ऐसा नहीं है। जो माँ माने निषेध व्यापार करने लग जाए, अरे इतनी शक्ति हमारे पास हो सकती है, इतना बड़ा कर्ता, सर्वकर्ता मैं हो सकता हूँ, सर्व ज्ञानशाली मैं हो सकता हूँ। ये निषेध के लिए जो व्यापार शुरू हो जाए, स्वातंत्र शक्ति का ही एक है अंगीकार स्वरूप, एक है निषेध स्वरूप, और ये दोनों ही एक साथ चल रहे हैं, एक साथ भगवान में चल रहे हैं। इसीलिए तो ये है कि विरुद्ध जो विरोधी धर्म है उनका आश्रय होना। आप वैष्णव के दर्शनों को देखें, ग्रंथों को देखें, भक्ति स्तोत्रों को देखें, विरोधी धर्मों का आश्रय है भगवान नारायण। तो विरोधी धर्म हमारे लिए आपके लिए है, उनके लिए नहीं। तो ये उत्पल देव कहते हैं, हे भगवान निवेदित मुपादत्स्व रागादि भगवन मया। ये रागादि जो जगत में हैं, जो दोष माने जाते हैं, राग भी दोष है, द्वेष भी दोष है। एक से हम राग करते हैं। आपने बताया जी, एक लड़का इनके घर में चोरी कर लिया और पिता ने कहा हमारा बेटा चोर है, वो राग है उसके प्रति। उसको अच्छी शिक्षा, इन्होंने कहा तुम अच्छा बता नहीं सकते हो उसको, मैंने दंड दिया नहीं, बाप होकर आपने बताओगे। तब भी वो माँ देखती है कि मेरे बेटा ने अपराध किया, लेकिन पड़ोस की माँ यदि इनके बेटे पर आक्रमण करने आ जाए तो गो जो है, गो के बछड़े पर, बछिया पर कोई सिंह भी आक्रमण कर ले तो गो जब तक जीवित रहेगी आक्रमण नहीं करने देगी। इसलिए गो हमारे यहाँ, आप घर से निकलें और गो जो आपको निहारेंगी वो तब तक उनकी दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी जब तक आप लौट करके घर आते हैं। ये गो माता है। तो ये रागादि जो हमने निवेदन कर दिया उसको आप ग्रहण करो, शिव से कहा। देखिए क्या निवेदनीय वस्तु है, तुम्हें निवेदित भोजन करही, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं रागादि को ही हमने आपको निवेदित कर दिया, आप ग्रहण करो, क्योंकि आपका स्वीकार करना धर्म है। जब भक्त देता है तो आप उसको स्वीकारिए। और आदाय चामृति कृत्य, आप उसको जब ग्रहण कर लेते हैं तो उसी में अमृतीकरण प्रयोग हो जाता है, वो अमृत बन जाता है। भुंस्व भक्त जनई समम, और फिर आप भक्त के साथ निवेदित जो राग आदि दोष है वह अब अमृत बन गया, उसका पान करिए। इतना ही निवेदन करके मैं आप लोगों से छुट्टी लेता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अतिशोभनम अतिशोभनम अतिशोभनम। Professor Kamlesha. And now I would like to invite Dr. Niti Singh to present the vote of thanks. नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च नमो नमः। पहले तो मैंने सोचा था कि इंग्लिश में बोलेंगे क्योंकि शायद सर को नहीं समझ में आता होगा, लेकिन अभी आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन हिंदी और मैं वोट ऑफ थैंक्स हिंदी में ही करूँगी। तो सबसे पहले तो आज के वक्ता हमारे डॉक्टर मार्क डाइस्कोव्स्की, इफ आई प्रोनाउंस राइटली, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि वो हमारे बीच में आए, हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और इतना एंगेजिंग लेक्चर था, इतना फ्रूटफुल इंटरेक्शन था और आई होप कि आप सबने बहुत एंजॉय किया और सबको समझ में आया। मेरे बीए के भी बच्चे हैं यहाँ पे, एमए वाले भी हैं, रिसर्च के भी हैं और सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। सो वी ऑल एंजॉयड योर लेक्चर अ लॉट सर, सो वी कांट थैंक यू एनफ फॉर दैट एंड यू आर वंडरफुल रियली। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर और इतना नॉलेज, इतना डीप थॉट और हिस्टोरिकल, पूरा फिलोसॉफिकल और सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपने इतना बेहतरीन तरीके से अपना व्याख्यान रखा और हम लोग बहुत डिलाइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि आप हमारे बीच में आए और आपने अपना समय निकाला और अपना व्याख्यान दिया। थैंक यू सो मच। एंड हमारे बीच में जो प्रेसिडेंट हैं आज के इस सेशन के, प्रोफेसर कमलेश झा सर, आपको सर कई बार सुन चुका है और एवरी टाइम यू जस्ट मेस्मराइज अस। बहुत अच्छा आप बोलते भी हैं और आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है और बच्चों को मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कंटेंट को मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो वो इतना लाइट एम्बियंस बना के रखे कि हम उसको कैप्चर भी कर पाएं, ग्रास्प भी करें और एंजॉय भी कर पाएं।
क्योंकि जब वो बहुत सिंसियर या सीरियस होने लगता है तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो इसलिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, मेरा आभार, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे इतना अच्छा व्याख्यान दिए। और मैं अपने हेड सर को थैंक्स कहने के लिए वैसे तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि सर नहीं होते तो शायद ये माहौल नहीं होता। तो सर आपको तो हृदय से धन्यवाद है कि आप इस विभाग के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम सब के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए इतना कुछ एफर्ट कर रहे हैं और हमेशा हम लोगों को एंगेज करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर एफर्ट यू आर पुटिंग फॉर दिस डिपार्टमेंट। और आज के हमारे कन्वीनर प्रोफेसर RK झा सर, you wonderfully conducted the whole session sir, so thank you so much. और I can't forget my faculty members, my philosophical fraternity, they are all here. सारे हमारे विभाग के प्रोफेसर्स, सारे लोग, प्रोफेसर S.C. दुबे सर, प्रोफेसर डॉक्टर बागड़े, डॉक्टर बालेश्वर सर, and Dr. Priyanka Mishra, Dr. Kalpana Yadav, Dr. Rahul Maurya, Dr. Rajiv, and Dr. Vivek भैया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग यहाँ पे हैं और साथ ही साथ हमारे बीच में अन्य विभाग से भी फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, जिसमें से डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज मैम। और मैं मैम आपका नाम नहीं जानती, लेकिन आप हमेशा सर के साथ रहती हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे विभाग में आई और हम लोगों को अपना दर्शन दिया। थैंक यू सो मच। और ये पूरा का पूरा सेशन कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स और जितने जुड़े हुए लोग हैं फिलॉसफी से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से और कॉलेजेस से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, वो लोग हमेशा यहाँ पे जुड़े रहते हैं। उनमें से कुछ नाम तो मैं लेना चाहूँगी, जैसे कि प्रोफेसर कृष्णैया सर हैं, प्रोफेसर पनीर सेल्वम सर हैं, प्रोफेसर DA गंगाधर सर, एंड आज हमने देखा कि प्रोफेसर डेनियल रावे सर भी काफ़ी लंबे समय तक जुड़े हुए थे और अभी वो हैं कि नहीं आई रियली डोंट नो, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग के कुछ सदस्य ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए थे, जिसमें प्रोफेसर ज्योत्सना श्रीवास्तव मैम, प्रोफेसर मुकुलराज मेहता सर, SP पांडे सर और लगभग सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जो कि हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, शिवेंद्र, राजन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कह सकते हैं कि आज का ये जो सेशन था ये बहुत सक्सेसफुल था और हम सब ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ नया जाना। खासतौर से तंत्र के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं प्रचलित हैं, बहुत सारा डर और बहुत सारे अलग अलग टाइप के विचार हम लोगों के मन में आते हैं तंत्र को लेके। तो बहुत सारी चीजें सर के व्याख्यान से और बाद में प्रोफेसर कमलेश झा सर के मंतव्य से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे ऑफिशियल पर्सन्स और डॉक्टर अरविंद जायसवाल जी, दिग्विजय मिश्रा जी, आशीष, आराधना और सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो आप सभी का धन्यवाद। सर आपको तो विशेष धन्यवाद। अब आप अनाउंसमेंट करें सर सबको। ठीक है, इस ज्ञान यज्ञ के बाद प्रसाद मिलने वाला है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो आप सभी लोग भोजन पर आमंत्रित हैं। और ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं ना? ठीक है, अभी हम लोग सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू।